Hi everyone, welcome back. In the last video, we configured our backend application. हमने देखा था कि कैसे JWT टोकन जो है वो जनरेट होता है, वैलिडेट होता है एंड हाउ डू वी यूज़ इट इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट अ यूज़र व्हेन द यूज़र ट्राइज टू एक्सेस एनी प्रोटेक्टेड रिसोर्स. In this video, we'll be configuring our front-end application and also we'll see how the front-end then communicates with our backend. तो फ्रंट एंड एक काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन ही रखी है हमने. बाय द वे ये पूरा कोड आपको पूरे कोड का गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन सिंपली डाउनलोड दिस कोड फ्रॉम देयर. एंड अगर आप गिटहब यूज़ करके कोड को डाउनलोड कर रहे हो तो यू नीड टू रन npm इंस्टॉल इन इट. मेक श्योर यू रन npm इंस्टॉल इन इट बिफोर यू एक्चुअली रन द कोड. तो फ्रंट एंड में हमारे पास दो फॉर्म्स ही हैं बेसिकली. वन फॉर्म इज़ टू साइन अप द एग्जिस्टिंग यूज़र, अनदर वन इज़ टू लॉग इन. Sign up a new user, that is registering a new user, and second is to log in using an existing user. तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं जाके. So in this sign up component, we have basically a form. The form contains 4 input fields, one for username, one for password, one for email, and another one is for full name. Apart from this, we have a submit type button that is used to submit the form, and when the form is submitted, we have created this method submit handler in order to handle the form submission, right? So when this form is submitted, when the submit credentials button is clicked, we reach into this method in which firstly we prevent the default form behavior जो refresh हो जाता है. Like you would have seen कि जब हम form को बिना e.prevent default करे submit करते हैं तो it ends up refreshing the page. So in order to avoid that, we make use of event.prevent default. उसके बाद we tap into the values that were present in the form. I have made use of ref. I made use of refs in order to tap into the form values. You can also use useState. That's up to your convenience. But useRef was, मतलब writing useRef code was pretty compact. बस यहाँ पे एक ref field लगा के form ref को attach करना था. And then using this form ref, I could tap into the values that are present inside our form. Using those values, I then created an object named as data. उस data को हमने lock किया जो हम देखेंगे भी. And after that, when we have that data object, when we have the user details which come from the fields of this form, we make a call to /auth/signup of our backend. Basically अपने backend application पे एक post request डालेंगे. I have made use of Axios in order to make this request. You can also use fetch. So in short, हम एक post request भेजेंगे and we'll send data along with it to the /auth/signup endpoint. And depending upon the response, अगर हमारा sign up successful हो जाता है तो we'll display a sign up successful message. या कोई error throw हो जाता है, we'll catch it in this block and display a message of sign up failed. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा साइन अप कॉम्पोनेंट था. कंप्लीटली आइडेंटिकल टू दिस इज़ आर लॉग इन कॉम्पोनेंट. बस डिफरेंस एक ये है कि साइन अप में हमारे पास 4 फील्ड्स थी, लॉग इन में हमारे पास 2 ही फील्ड्स हैं, वन फॉर ईमेल, अनदर वन फॉर पासवर्ड. उसके अलावा सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है. एज यू कैन सी वी हैव अ बटन ऑफ टाइप सबमिट विच सबमिट्स द फॉर्म. टू हैंडल द फॉर्म सबमिशन वी हैव दिस मेथड सबमिट हैंडलर जो हमने ऑन सबमिट हुक से के कॉरस्पॉन्डिंग लगा रखा है. In this, we are firstly tapping into the form values, again using a form ref. Form ref के लिए use ref import आपको करना पड़ेगा. उसके बाद we are making use of Axios to make a request to our backend. This time to /auth/login. We have also sent this data जो हमें form से receive हुआ है. And depending upon the response, we display either login successful or a login failed. ठीक है, so we can now run our application to see if it works or not. In order to run this application, you need to type npm run dev. On doing this, the application should start on port 5173. Let me first go to the sign up endpoint और यहाँ पे कुछ भी भर देते हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Now ideally when I click the submit credentials button, एक कॉल जानी चाहिए to my backend. इसको हटाना पड़ेगा पहले. Just a second. Here, yeah, right. आइडियली मैं जब इस फॉर्म को जब मैं सबमिट क्रेडेंशियल्स बटन पे क्लिक करूँ तो सबमिट हैंडलर मेथड जो है, सबमिट हैंडलर फंक्शन इन्वोक होना चाहिए एंड एक कॉल जानी चाहिए मेरे /auth/signup एंड पे अलॉन्ग विद द डेटा जो भी मैंने फॉर्म में डाला है. लेट्स सी होता है या नहीं. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कि हमारा बैकएंड भी अप एंड रनिंग हो. सो विल स्टार्ट आवर बैकएंड एप्लीकेशन.
एज यू कैन सी कोई एरर आया। एरर का मतलब क्या है, दिस एरर केम बिकॉज मेरा डॉकर अभी अप एंड रनिंग नहीं है, क्योंकि मेरे सिस्टम में MySQL नहीं है इस वाले में। सो आई नीड कि MySQL मेरा चले। आई नीड डॉकर इन ऑर्डर टू रन माई MySQL। सो आई जस्ट गो एंड डू दैट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि MySQL DB जो है मेरा, दैट इज़ करेंटली स्टॉप्ड। तो आई विल स्टार्ट इट will take some time to start. As you can see, my MySQL DB container has now started. So if I try and run this application again, it has started successfully on port 8005. Now if I go to my sign up endpoint and put in random data, and now when I click on the submit credentials button, ideally backend पे request जानी चाहिए along with the data जो भी मैंने फॉर्म में एंटर किया है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन सबमिट क्रेडेंशियल्स, एज यू कैन सी कि फर्स्टली हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो भी हमने फॉर्म में डेटा डाला है, दैट इज़ कैप्चर्ड यूजिंग दिस कंसोल लॉग डेटा। तो मतलब यहाँ तक तो हिसाब सारा सही चला है, यहाँ तक तो सारी चीज़ें अच्छे से चली हैं। उसके बाद वी सी एन एरर। वो एरर क्या है कि एक्सेस टू दिस एट localhost 8005 from origin 5173 has been blocked by CORS policy. If you remember, तो कल की वीडियो में जब मैं आपको सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था, तब वहाँ पे ये CORS कॉन्फ़िगरेशन वाला कोड था जिसको मैंने उस टाइम कमेंट कर रखा था। अब टाइम है इस कोड को अनकमेंट करके समझने का, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो है दैट इज़ होस्टेड ऑन पोर्ट 5173, और जो हमारा बैक एंड है दैट इज़ होस्टेड ऑन पोर्ट 8005। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम पोर्ट 5173 से पोर्ट 8005 पे कॉल नहीं लगा सकते। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्ड बाय दिस CORS पॉलिसी। In order for this to be enabled, in order for us to be able to call our application that is hosted on some other port, हमें कुछ configurations करनी पड़ेंगी, and ये है वो configuration जो हमें करनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहले we set allowed origins, we make use of set allowed origins method। इसका मतलब क्या है कि it specifies the origins जहाँ से हम अपनी application पे कॉल लगाना allow कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो in this case I have used localhost 5, I have written localhost 5173। इसका मतलब ये कि मैं localhost 5173 से अपनी बैकएंड एप्लीकेशन पे कॉल लगाना अलाउ कर रहा हूँ। तो अगर कोई रिक्वेस्ट 5173 से आ रही है तो उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक ना किया जाए, इसका इंडिकेशन है सेट अलाउड ओरिजिन्स। एज यू कैन सी कि ये एज लिस्ट हम पास करते हैं, सो यू कैन पास मोर ओरिजिन्स। अगर आपके पास localhost 3000 भी है तो लेट्स से localhost 3000 भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली यू कैन कन्फिगर द ओरिजिन्स जहाँ से आप चाहते हो कि आपके बैकएंड एप्लीकेशन पे कॉल लगे और वो कॉल ब्लॉक ना हो, तो वो सेट अलाउड ओरिजिन्स में आप मेंशन करते हो। सेकेंड है सेट अलाउड मेथड्स। इसमें क्या है कि वी नो दैट देयर आर मेथड्स लाइक गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट। सो वी नीड टू वी कैन आइदर चूज टू अलाउ ऑल ऑफ दोज मेथड्स, या फिर वी कैन सिलेक्ट कि हमें कौन कौन से मेथड्स अलाउ करने। फॉर दिस प्रोजेक्ट आई एम अलाउिंग ऑल द मेथड्स टू बी अलाउड, एंड दैट्स वाई आई पास इट एज स्टार। स्टार का मतलब है कि भले गेट रिक्वेस्ट हो, भले वो पुट रिक्वेस्ट हो, या पोस्ट हो, या फिर वो डिलीट रिक्वेस्ट हो, सारी रिक्वेस्ट को अलाउ किया जाए। दैट्स व्हाट दिस सेट अलाउड मेथड सिग्निफाइज कि कौन कौन से मेथड्स अलाउड हैं। तीसरा है सेट अलाउड हेडर्स। हेडर हमने कल देखा था जब हम पोस्टमैन से, कल इन द सेंस पिछली वीडियो में देखा था कि जब हम पोस्टमैन से अपनी बैकएंड एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे थे तो हमने JWT टोकन जो था वो हेडर में, ऑथोराइजेशन हेडर में पास किया था। एंड देयर वर सेवरल अदर मेथड्स एज वेल। अगर मैं पोस्टमैन पे भी जाऊँ, एज यू कैन सी काफ़ी सारे हेडर्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे हेडर्स हैं, एज यू कैन सी 10 हेडर्स हैं। सो दिस सेट अलाउड हेडर रिप्रेजेंट कि कौन कौन से हेडर्स आप अपने सोर्स से बैकएंड पे भेजना अलाउ कर रहे हो। अगेन फॉर नाउ मैंने इसे स्टार मार्क किया है, मतलब कि मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे हेडर्स को अलाउ कर दिया जाए, जितने भी हेडर्स सोर्स से या फ्रंट एंड से बेसिकली हमारे एप्लीकेशन पे आ रहे हैं सबको अलाउ किया जाए। डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन ये दोनों क्या तीनों चीज़ें चेंज होंगी। सो यू कैन सी अबाउट दैट, ठीक है। एक चीज़ है ये source.register course configuration, this pattern and this configuration। इसका मतलब है कि /*, दैट मीन्स कि कोई भी रिक्वेस्ट हो, जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उन सब पे हम चाहते हैं कि कोर्स कॉन्फ़िगरेशन ये अप्लाई हो। कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है जिसके लिए हमने एग्जेम्प्ट किया है। वी वांट कि जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उन सब पे ये कोर्स कॉन्फ़िगरेशन लागू हो, अप्लाई हो। सो दिस लाइन बेसिकली स्पेसिफाइज दैट, राइट। सो नाउ वी हैव डन आवर कोर्स कॉन्फ़िगरेशन।
अच्छा एक चीज़ और कि कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन JWT स्पेसिफिक नहीं है, मतलब इवन इफ़ वी वर नॉट डूइंग JWT ऑथेंटिकेशन, अगर हमें फ्रंट एंड से बैक एंड पे कुछ भी भेजना है, सो वी नीड टू डू दिस कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन, तभी वो पॉसिबल होगा. ठीक है, सो नाउ दैट वी आर डन विद आवर कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन रीस्टार्ट आवर एप्लीकेशन and we'll let it start. And once it starts, we'll send another sign up request from our front end. I'll just refresh the page. कोई अच्छा सा नाम देते हैं, लेट्स से नाम दूंगा मैं संदीप. पासवर्ड वुड बी ABC. ईमेल रखते हैं sandeep@gmail.com. फुल नेम हो गया संदीप कुमार. नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन द सबमिट क्रेडेंशियल्स बटन, देखते हैं क्या होता है. एज यू कैन सी, अब जब मैंने सबमिट क्रेडेंशियल्स बटन पे क्लिक किया तो मेरे को साइन अप सक्सेसफुल का मैसेज दिखा. मुझे एरर नहीं दिखा, वो कॉर्स एरर नहीं दिखा. वो क्यों नहीं दिखा? क्योंकि इस बार हमने अपनी एप्लीकेशन में वो कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन कर दी. हमने अपनी कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन में लोकल होस्ट 5173 से आने वाली सारी रिक्वेस्ट को अलाउ किया है. एंड फॉर दैट रीज़न इस बार जब हमने साइन अप रिक्वेस्ट भेजी अपने फ्रंट एंड से टू आर बैक एंड, हमें वो कॉर्स एरर नहीं दिखा. ठीक है, सो दिस इज़ आर साइन अप एंड पॉइंट. नाउ लेट अस गो टू आर, जस्ट कॉपी दिस ईमेल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर लॉगिन एंड पॉइंट. लॉगिन पे जाएंगे तो दो फील्ड्स हमारे पास, एक ईमेल फील्ड है, एक पासवर्ड फील्ड है. ईमेल में अगर मैं यही जो अभी मैंने यूज़र क्रिएट किया वही डाल देता हूँ, और पासवर्ड में लेट्स से आई टाइप ABC. नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट क्रेडेंशियल्स बटन, तो याद करते हैं कि जब हमने पोस्टमैन से लॉगिन किया था तो क्या हुआ था. जब हमने पोस्टमैन से लॉगिन किया था, या फिर अभी कर ही लेते हैं मेरे हिसाब से, तो लेट्स डू दिस. ये एक एग्जिस्टिंग यूज़र है जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बनाया था. तो लेट्स गो टू दिस लॉगिन //login. यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं विद दिस. पासवर्ड ABC ही है. जब हमने अपने पोस्टमैन से लॉगिन किया था, वी रिसीव्ड टू थिंग्स. वी रिसीव्ड अ टोकन and we received an expires in field which denotes the expiration time remaining of the JWT token. तो जब हम अपने फ्रंट एंड से लॉगिन करेंगे तब भी हमें यही दोनों चीज़ें रिसीव होनी चाहिए आइडियली. देखते हैं इफ़ वी क्लिक ऑन सबमिट क्रेडेंशियल्स बटन, क्या हमें ये दोनों चीज़ें, क्या हमें ये JWT टोकन और ये एक्सपायर्स इन फील्ड मिलती हैं या नहीं. सो इफ़ आई क्लिक ऑन दिस, एज यू कैन सी इन द कंसोल लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज हमें दिखा. एंड वी ऑल्सो रिसीव्ड द रिस्पॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स. First is this expires in field and second is this JWT token. इसका मतलब लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो गया एंड फॉर दिस पर्टिकुलर यूज़र एक JWT टोकन भी क्रिएट हो गया. सो इफ़ आई जस्ट कॉपी दिस, नाउ लेट अस चेक कि टोकन वैलिड है या नहीं. ये टोकन को यूज़ करके हम कोई प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते. सो आई जस्ट कॉपीड दिस JWT टोकन एंड आई विल नाउ गो बैक टू माई पोस्टमैन. ये देखना कि मैंने यहाँ पे लॉगिन संदीप वाले यूज़र से किया है, विच इज़ नॉट द केस इन पोस्टमैन. ठीक है, पोस्टमैन पे मैंने संदीप वाले यूज़र से लॉगिन नहीं किया है. इफ़ आई गो टू अ प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट, ठीक है, आई डिलीट दिस फॉर नाउ. इफ़ आई गो टू अ प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट एंड ट्राई टू एक्सेस इज राइट नाउ, तो हमें फॉरबिडन एक स्टेटस दिखेगा बिकॉज वी डिड नॉट पास द ऑथराइजेशन हेडर. इफ़ आई ऐड द ऑथराइजेशन हेडर एंड आई पेस्ट माई JWT टोकन यूजिंग bearer स्पेस एंड द JWT टोकन जो मैंने अभी यहाँ से कॉपी किया कंसोल में से. If I now send this request, you will see कि संदीप वाला यूज़र हमें डिस्प्ले हो रहा है. दैट मीन्स कि फ्रंट एंड से लॉगिन करके जो हमें JWT टोकन मिला था, दैट JWT टोकन इज़ वैलिड एंड यूजिंग दैट JWT टोकन वी कैन नाउ एक्सेस एनी प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट्स विदाउट एनी डिफिकल्टीज या विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो JWT टोकन हमें बैक एंड से ऑन लॉगिन फ्रंट एंड पर मिला, दैट टोकन इज़ वैलिड. राइट, अगर मैं /users भी एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो यू विल सी कि वी रिसीव अ लिस्ट ऑफ यूज़र्स. दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन एंड दिस इज़ हाउ वी डू JWT ऑथेंटिकेशन यूजिंग अ React.js एप्लीकेशन एंड Spring Boot. मतलब मेजरली काम तो Spring Boot का ही था. React.js एप्लीकेशन का काम सिर्फ ये था कि वो डेटा ट्रांसमिट करे बैक एंड पे, एंड हमारा जो Spring Boot एप्लीकेशन है वैलिडेट्स द यूज़र and then it sends the JWT token along with it, and using that JWT token हम किसी भी एंड पॉइंट को, प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं if we pass it in the authorization header. Right, so this was it. I think I have covered whatever I wanted to and I hope आप लोगों को भी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. If you have any doubts or queries you can ask them in the comments.
And I guess, yeah, this is it. See you next time. Goodbye.